So it is also referred to as intracellular respiration, in which the cell uses oxygen if present. Okay, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है it is called aerobic, अगर नहीं है तो it is called anaerobic. Okay, to oxidize the substrate into products and get energy. तो इसीलिए जनरली मैंने रेस्पिरेशन में वी एक्सपेक्ट, क्योंकि मोस्ट कॉमन है आपका ऑक्सीजन एरोबिक, इसलिए हमने उसको एरोबिक लिख लिया. नाउ the energy so produced is used to perform various works of the cell and hence of the body, because cell will make the body ultimately. So in general, there are two types of cellular respiration depending on the availability of oxygen. Okay, so that we have discussed. So if oxygen is present, the respiration is referred to as aerobic, and it involves both the cytoplasm and the mitochondria. At the end of aerobic respiration, we know that the net production is 36 to 38 ATP per glucose. Okay, this is provided if your mitochondria is functional. Now, if oxygen is absent, the respiration is called anaerobic, and it only involves the cytoplasm. The mitochondria is not used or is absent. In case of anaerobic respiration, okay, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, okay, the net production, okay, the net production of ATP is 2 ATP. Net production, net ATP produce is actually, this is not in, this is ATP. The net ATP produced is 2 per glucose molecule. Now, उसके बाद, in case of anaerobic respiration, the steps involved are glycolysis. Number B is reduction of pyruvate into different types of intermediate. ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होगा, ये वेरिएबल सिस्टम. ओके, बट इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, सबसे पहले होगा ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद होगा क्रेब्स साइकिल, उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम लिख देंगे एंड केमी ऑस्मोसिस. ओके, एंड लास्ट इज एटीपी सिंथेसिस. तो ये हमारा पूरा समरी ऑफ द रिएक्शन है. अगर आप देख रहे हो तो स्टेज 1 में आपका क्या हो रहा है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, तो वो अलग अलग पाथवे से आएंगे. तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से आएगा पायरुवेट तक, फिर क्रेब्स साइकिल, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा. एसिटिल कोएंजाइम एक कॉमन इंटरमीडिएट है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड साइकिल, है कि नहीं. तो अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये आगे आपका क्रेब्स साइकिल्स चलाएगा and it will generate 2 molecules of ATP per glucose and NADH and FADH2. Now all these NADH and FADH2 will go to the electron transport system and ultimately produce ATP and water molecule. ये कैसे होगा ये हम धीरे धीरे जानेंगे. Now cell respiration is common to all cells, but the type of respiration may vary, है कि नहीं. तो but the type of respiration may be variable, क्योंकि एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा ये कंडीशन डिसाइड करेंगे. In yeast, muscle cells, mature RBCs, etc., cell respiration is anaerobic, but in most other eukaryotes it is aerobic. Irrespective of the type of respiration, the first step is glycolysis. कोई मर्जी हो जाए, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है. उसको EMP पाथवे कहते हैं. क्यों? On the basis of their discoverers, Emden, Meyerhoff and Parnas. Okay.
ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो रेफर्स टू अदर सच पाथवेज, बट ये आपका सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग सिर्फ EMP पाथवे ही डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर व्हाट द फर्स्ट. अब हम लोग चलते हैं, we will go into the heading of the glycolysis or EMP pathway as the name suggests. So glycolysis is the metabolic pathway that breaks glucose into pyruvate and hydrogen ion. ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन आपका आगे NADH बनेगा. इन ग्लाइकोलाइसिस द ग्रीक वर्ड, कहां से बना ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोस या ग्लाइकिस मतलब स्वीट या शुगर है, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग. तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड, है कि नहीं? तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको हम डिग्रेड करते हैं इन अ सीरीज ऑफ 10 enzyme catalyzed reactions to yield 2 molecules of 3 carbon compound called pyruvate, है कि नहीं? तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है पाइरुवेट. अंडरस्टूड? पाइरुवेट जनरली हम लोग आयनिक फॉर्म में बोलते हैं, आप पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो. फाइन, तो एसिड इज द एसिडिक फॉर्म, pyruvate is the ionic form. Now, during the sequential reaction of glycolysis, some of the free energy released from glucose is conserved in the form of ATP and NADPH. Okay, so glycolysis was first metabolic pathway to be elucidated. इसको हम लोग रेड कर देते हैं. तो ये हमारा जितना भी पाथवेज है उसमें सबसे पहला पाथवे ये था फ्रॉम एडवर्ड्स बकनर. एडवर्ड बकनर कौन थे? हमारे एंजाइम वाले. डिस्कवरी इन 1897 ऑफ फर्मेंटेशन, बिकॉज उन्होंने कौन सा एंजाइम डिस्कवर किया था? जाइमेज. तो उन्होंने जाइमेज एंजाइम डिस्कवर किया था. ठीक है जी, तो इसीलिए तो दैट इज द केस. इन ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा क्या था, बकनर ने आपका फर्मेंटेशन डिस्कस किया था until the elucidation of the whole pathway in yeast. So who elucidated the whole pathway in yeast? Otto Warburg and Hans von Euler-Chelpin. Okay, ये ईस्ट में उन्होंने डिस्कवर किया था. And in muscle it was discovered by Gustav Emden and Otto Meyerhoff. समझे कि नहीं? तो मसल सेल में डिस्कवर किया था एम्डन एंड मेयरहॉफ ने, एंड वार्बर्ग एंड शेल्पिन ने ईस्ट में ग्लाइकोलाइसिस को पूरा ऑल द 10 स्टेप डिस्कवर किया था. सो दीज आर द 3 हम्बल पीपल, है कि नहीं? सो शेल्पिन, एम्डन एंड मेयरहॉफ. ठीक है, चलिए. सो द फ्री एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस is used to form the high energy molecules called ATP and NADH, that is called reduced nicotinamide adenine dinucleotide. If ATP is directly made, it is known as substrate level phosphorylation. Okay, अगर आप डायरेक्टली वहीं का वहीं बन जाता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं. बट if it is made after entering mitochondria, okay, ETS, chemiosmosis, okay, and ATP synthesis, it is referred to as oxidative phosphorylation. क्यों? एक चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन इसमें होता है. ठीक है. The glycolytic breakdown of glucose is the sole source of energy in some mammalian tissues and cell types. Very very important. कौन कौन सा? RBCs. ओके, तो RBCs जो सेल हैं, उसके बाद रेनल मेड्यूला, जो किडनी का मेड्यूला जहां हम लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ब्रेन एंड स्पर्म. ओके,
तो ये सब का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका ग्लाइकोलाइसिस है। क्यों? बिकॉज स्पर्म में आप बोलोगे सर स्पर्म में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट वो क्यों एनर्जी नहीं देता? वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? वहां माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या, बताइए? वहां माइटोकॉन्ड्रिया का काम है आपका टेल को हिलाना। फाइन, दैट इज द जॉब ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट हैज टू मूव द टेल। ठीक है। Now, some plant tissues that are modified to store starch, such as potato tubers, and some aquatic plants derive most of their energy from glycolysis. Okay? Many anaerobic organisms are entirely dependent on glycolysis. तो अगेन ये भी एक रेड पॉइंट है, आप रेड कर सकते हो. Fermentation is a general term for the anaerobic degradation of glucose. तो जनरली कुछ मर्जी हो उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं. तो अगर अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगर आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टेट फर्मेंटेशन. ओके, चलिए. तो इसलिए फर्मेंटेशन इज जनरल टर्म यूज्ड फॉर anaerobic degradation of glucose or other organic nutrients to obtain energy conserved as ATP. Okay, because living organisms first arose in atmosphere without oxygen. तो सबसे पहला एटमॉस्फेयर क्या था? वहां ऑक्सीजन नहीं था. सो इसीलिए the anaerobic breakdown of glucose is probably the most ancient. Okay, ये सबसे पुराना मैकेनिज्म होगा. Okay, for obtaining energy from organic fuel molecules. And as genome sequencing of wide variety of organisms has revealed, some archaea and some parasitic microbes lack one or more enzymes. उनके पास एंजाइम ही नहीं है of glycolysis. Okay, so they lack one or more enzymes but retain the pathway. So they presumably carry out variants of glycolysis. आ गया समझ? इसका मतलब क्या है? Actually what happened, इनके पास कुछ ना कुछ एंजाइम्स की कमी है. ओके, कोई ना कोई एंजाइम्स की कमी है, बट आपका क्या पाथवे पूरा का पूरा है. तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई ना कोई वेरिएशन फॉलो कर रहा है. क्लियर? In the course of evolution, the chemistry of this reaction sequence has been completely conserved. Completely conserved का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता. पानी नहीं तो सॉरी जाइए बा उधर ऑन कर दे, स्विच ऑन कर दे. आउट पर आसियो हाउ आसियो. Okay, the glycolytic enzymes of vertebrates are closely similar in amino acid and 3D structure. Okay, इसका मतलब है जो प्लांट्स में जो एंजाइम है उसके एंड एनिमल के एंजाइम्स में नियर सिमिलैरिटी है amino acid sequence as well as 3D structure. Understood? So glycolysis differs among species only in the details of its regulation and in the subsequent metabolic fate of pyruvate. तो ये डिफरेंस है बेसिकली, अदरवाइज पाथवे तो सेम ही है. The thermodynamic principle and types of regulatory mechanisms that govern are common to all pathways. तो ये सारे pathways के लिए सेम है. Okay. Now, the glycolytic pathway of central importance in itself can also serve as a model for many aspects of the pathways. ठीक है? Now, ये is important है and it requires no oxygen. So this step is common. इसके लिए इससे कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है. हो तो भला, ना हो तो भी भला. Okay? So this is common for all steps. ठीक है?
चलिए अभी कुछ पूछना इस बारे में पूछिए, नहीं तो फिर चलेंगे आगे हम लोग। फॉर सम टाइम आई हैव अनम्यूटेड यू, you can unmute yourself. Anything to ask or we'll go ahead? ये थोड़ा हिस्ट्री हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, किस किस में किस किस तरह का होता है, अलग अलग तरह का ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, बट बेसिक ढांचा सिमिलर है। एंजाइम्स की कमी हो सकती है, कुछ इधर उधर हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे कंसेप्ट इज सिमिलर। चलिए बोलिए, anything to ask or we'll go ahead? ठीक है सर, समझ आया। हाँ बोलिए। कोई We'll go डाउट नहीं ahead, है। sir. हाँ चलो, let's go ahead. So let us mute all of you again. चलिए लेट्स गो अहेड। अब हम लोग चले जाते हैं उस स्टेप पे बेसिकली। ओके, ग्लाइकोलाइसिस, तो इट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ द सेल। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लाइकोलाइसिस से ही शुरू करना पड़ेगा, because the most favored substrate for energy pathway is glycolysis. ठीक है, so the most favored energy pathway for energy production is glycolysis, is carbohydrate, and carbohydrate का शुरुआत ऐसा ही होगा। ठीक है जी। now the substrates or their intermediates can enter, अगर आप अलग अलग फूड खाते हैं, okay, the substrates or their क्या और their intermediate, सपोज आप कोई बीच का स्टेप ले रहे हो तो इंटरमीडिएट बनेगा, है कि नहीं? Fine, the substrates or their intermediates can enter in any part of the given pathway. okay, तो आप ग्लूकोज है, फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा, है कि नहीं? ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोलाइसिस होगा। अरे यार, फिर पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर क्रेब्स, फिर एटीएस, फिर केमियंस, फिर एटीपी सिंथेसिस। ओके, तो इसलिए आप फैट हो, आप प्रोटीन खाओ, कुछ मर्जी खाओ, एनर्जी चाहिए तो इसी लाइन पे आना पड़ेगा। सो दिस लाइन इज द एनर्जी पाथवे, whatever on earth you eat. तो सपोज आप फैट्स खाते हो, कुछ ऐसा करिए कि आप यहाँ ज्वाइन कर सके। अगर आप प्रोटीन्स खाते हैं तो कुछ ऐसा करिए कि आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाथवे यही है। अंडरस्टूड? जैसे सपोज हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं, तो अब सपोज बस जो है वो आद्याशा के घर से जाएगा, उसके घर के पास से, तो why should you force her to come to our school at the beginning, है कि नहीं? क्यों वो बेचारी इतना दूर आएगी सुबह सुबह 5 बजे? घर अगर बस उसी की तरफ से जा रहा है, वो वहीं से चढ़ जाएगी। सो लाइक दैट। ओके, सो इसीलिए ग्लूकोज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। सपोज ग्लूकोज है, अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के थ्रू जाना है तो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से कुछ भी खाओ वो ग्लूकोज बन सकता है। सो दैट स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? अदर देन कार्बोहाइड्रेट से अगर वो जा रहा है उसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें मैं लिख देता हूं, synthesis of glucose from क्या? non carbohydrate sources is equal to क्या? इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है,
तो आप ग्लूकोज बनाइए एंड इस पाथवे को ज्वाइन कर लीजिए। बट कोई जरूरी नहीं, यू कैन ज्वाइन एट अदर प्लेसेस ऑल्सो। कोई एसिटिल कोएंजाइम ए बन के ज्वाइन कर सकता है, ओके, बिकॉज इधर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वहीं ज्वाइन करना है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। बट फिर एनर्जी अकॉर्डिंगली मिलेगा। देखो, अगर कोई ग्लूकोज से घुस के एटीपी बन रहा है पूरा पाथवे फॉलो करके, तो उसे 36 38 मिलेगा। पर आप बीच में कहीं घुसे हो एंड ये सपना देख रहे हो कि मेरे को तो फुल एटीपी मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो आपको आगे से एटीपी मिलेगा। फाइन, सो पीछे वाला एटीपी आपको कैसे मिलेगा? आप तो उस पाथवे में आए ही नहीं थे। So this is the thing which you have to remember. So it is a sequence of 10 enzyme catalyzed reactions. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें टोटल 10 रिएक्शन है एंजाइम कैटलाइज्ड। Most monosaccharides such as fructose and galactose can be converted to one of these intermediates. Okay, आप ग्लूकोज से हमें फ्रुक्टोज, देखो हमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसीलिए एनी ऑफ दीज को आप आ सकते हो। तो ग्लूकोज आइसोमराइज करके फ्रुक्टोज ग्लूकोज बन सकता है, गैलेक्टोज भी आइसोमराइज करके ग्लूकोज बन सकता है। इस तरह से कुछ मर्जी बन के आप आ सकते हैं। The intermediates may also be directly useful rather than just utilized as steps in the overall reaction. भाई कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी पाथवे में आना पड़े, बट फिर आपको अलग रास्ते से एनर्जी लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट is the source of the glycerol that combines with fatty acids to form fat. देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट है वो एनर्जी ही दे, कोई जरूरी नहीं है, उसका और भी काम हो सकता है। तो हर कोई थोड़ी एनर्जी सोर्स होगा। एवरीथिंग यू ईट इज नॉट ए फ्यूल, तो इसलिए उनका अलग काम भी हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए आपको जबरदस्ती ग्लूकोज बन के या एनर्जी देकर सेटिस्फाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? नाउ the respiratory pathway can link in many ways with other pathways to make them a part of the anabolic or catabolic reactions. ये हम glycolysis के बाद समझेंगे। Okay, the wide occurrence of glycolysis indicates that it is an ancient pathway, ancient metabolic pathway. Okay, क्योंकि आप जान रहे हो कि पहला ऑर्गेनिज्म है माइक्रोब्स, वो भी एनारोबिक, तो ग्लाइकोलाइसिस तो उस जमाने से है कि नहीं? Indeed, the reactions that constitute glycolysis and its parallel pathways, okay, are also found in Archean oceans, okay, and उस ओशन में भी था जहाँ एंजाइम्स नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ा सा उसका हिस्ट्री है। अब it involves basically 2 steps. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। ये सब हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला स्टेप है उसको प्रिपरेटरी स्टेप बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट विल गिव द इट विल प्राइम या इट विल एक्टिवेट द ग्लूकोज। ओके, तो इसलिए रिएक्शन को जैसे आपको कुछ करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, उसी तरह इसको आप एक्टिवेशन पार्ट ऑफ द साइकिल कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ग्लूकोज को एक्टिवेट कर दोगे या प्राइम कर दोगे तो फिर वो आगे जाके एनर्जी देगा, एंड ये एक लंबा सा पाथवे होता है, बट ग्लाइकोलाइसिस इज वन ऑफ दैट पाथवे। ओके, चलिए उसके बाद द पे ऑफ फेज। तो पे ऑफ फेज इज द सेकेंड पार्ट। तो ये जो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टेप्स 1 to 5। ओके, स्टेप्स 1 to 4 है एक्चुअली, 5 जो है वो इंटर कन्वर्टिंग स्टेप है, तो इसलिए स्टेप्स 1 to 5 जो है उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। जो सेकेंड फेज है दैट इज कॉल्ड पेमेंट फेज या पे ऑफ फेज। यहाँ एटीपी मिलता है,
तो ये है आपका स्टेप्स 6 to 10, ठीक है। सो दीज स्टेप्स, एंड प्लीज रिमेम्बर ये गारंटेड क्वेश्चंस हैं, ओलंपियाड में, आपका आईएनपीओ में ऑलरेडी आ चुका है, इवन केवीपीआई में। तो ये सब के लिए ये थुआ टॉपिक है, आपके एनुअल्स में भी आने का बहुत अच्छा चांसेस है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे, okay, for energy and also for exam point of view. So the pathway of glycolysis as it is known today took almost 100 years to fully elucidate. तो आपका जब लोगों ने काम करना शुरू किया था एंड जब ये रिजल्ट आया, इसको नियरली साल लग गया। The combined results of many smaller experiments were required in order to find the pathway. तो बहुत सारा अलग अलग साइंटिस्ट इन्वॉल्व है इसमें। चलिए, तो ये पाथवे है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस स्टेप। तो ये हमारा पहला पार्ट है, दैट इज योर प्रिपरेटरी फेज। तो इसको हम लोग अगर हो तो एक बॉक्स बना सकते हैं, ये रहा। So this is your priming phase and ये जो है आपका पे ऑफ फेज है, ऑलरेडी लिखा भी है वहां, तो हम बस अपना थोड़ा सा इसको कलरिंग कर देंगे। फाइन। सो ये आपका पे ऑफ फेज है। तो स्टेप नंबर 1 इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू क्या, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-phosphate। तो ये हमारा पहला रिएक्शन है, एंड एज आई हैड डिस्कस्ड टू यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों? इस तरह से क्या होता है, सेल जो है अपने पास ग्लूकोज रख लेता है और उसको ग्लूकोज 6-phosphate के फॉर्म में रखता है। इसका मतलब जब भी आपको सेल सी, एक सेल के पास अमाप ग्लूकोज होगा, फिर भी वो उसके पास लो ग्लूकोज होगा। क्यों उसके पास लो ग्लूकोज होगा? क्योंकि जो ग्लूकोज उसे मिलेगा उसे वो ग्लूकोज 6-phosphate के रूप में रख लेता है, नॉट एज ग्लूकोज। तो उसको जब भी पूछो कि भैया ग्लूकोज है, तो बोलेगा नहीं आ गया, सॉरी जाइची। तो इसलिए ऑलवेज देयर विल बी ग्रेडियंट फॉर ग्लूकोज टू एंटर इनटू सेल। व्हाई? बिकॉज दे डोंट रिटेन ग्लूकोज एज इट इज। ओके, तो एज इट इज ग्लूकोज को नहीं रखते। चलिए, सो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट स्टेप। तो अब ये स्टेप कौन करता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। एंड इस हेक्सोकाइनेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्नीशियम आयन। तो ये आप याद रखेंगे। तो मैग्नीशियम आयन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर काइनेज। अगर आप मैग्नीशियम दोगे तो ये रिएक्शन फास्टर रेट में होगा, अगर आप नहीं दोगे तो ये रिएक्शन स्लोअर रेट में होगा। क्लियर? उसके बाद एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, एंड ये जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज 6-phosphate जो है वो फ्रुक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट हो जाता है। एक एल्डिहाइड बिकम से क्या, इसमें एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड into a ketone. Okay, so aldehyde is converted into a ketone. Fine. तो ये हमारा isomerization reaction हो रहा है, and who is catalyzing this reaction? This is catalyzed by phosphohexose isomerase. Okay, या इसको hexose phosphate isomerase HPI भी बोल सकते हो। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम लोग, तो यहाँ एक एटीपी खर्च हो गया हमारा। तो ऑलवेज एटीपी जहां भी खर्च करेंगे आप मैग्नीशियम देंगे। इधर भी एटीपी खर्च कर रहे हो तो इधर भी आपको मैग्नीशियम देना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नीशियम का जो है एटीपी के साथ क्या अच्छा रिश्ता है, एंड उसके साथ रिएक्शन
फास्टर होता है। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग मैग्नीशियम along with ATP, so that reaction is faster. ओके, सो ये हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है। इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पेस मेकिंग। ओके, पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फाइन, सो इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, दिस एंजाइम। एंड ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू डिटरमिन द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगर यहाँ ये रिएक्शन फास्टर हो रहा है उसको हम फास्ट ग्लाइकोलाइटिक मसल्स बोलते हैं, अगर स्लोअर हो रहा है इसको हम स्लो ग्लाइकोलाइटिक मसल्स बोलते हैं। ओके, तो दीज आर द कंसेप्ट्स। तो इसलिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक वेरी वेरी रेट डिटरमिनिंग एंजाइम है। क्लियर? उसके बाद यहाँ हमारा 1,6-बिसफॉस्फेट बन गया। एक्चुअली आप जानते हो केमिस्ट्री में आजकल कंसेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर चेंज हो गया है, बाई को बिस बोला जाता है आजकल, इसलिए यू डोंट नीड टू बॉदर। अगर किसी पुराने बुक्स में बाई लिखा हो या डाई लिखा हो तो कोई डरने का चीज नहीं है, एक ही बात है, दिस इज ड्यू टू चेंज इन नोमेनक्लेचर। हो गया, तो अब हमारा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन गया। तो ये जो फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है इसको हम तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। एंड ये जो एल्डोलेज एंजाइम आपका इसको तोड़कर दो आइसोमर बनाता है, एक एल्डिहाइड आइसोमर, एक कीटोन एसिड। तो जो एल्डिहाइड आइसोमर है उसको ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलते हैं, एंड जो कीटोन आइसोमर उसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। ना इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको इस वाले पेज में दिखाऊंगा, या मैंने उसको बना के रखा हुआ है, वहां जगह नहीं होता। तो यहाँ देखिए, सपोज ये हमारा एल्डोलेज का एक्टिविटी है। फाइन, तो यहाँ क्या देख रहे हो, ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है, मतलब 1 में भी फॉस्फेट है एंड 6 में भी फॉस्फेट है। तो फ्रुक्टोज में क्या होता है, आपका सेकेंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप होता है कि नहीं?